Dr. Jesh, I think your machine is making noise, no? You can mute your ear. So today we will start from page number 25. This is nutritional requirement of fats and health aspects. Okay. In different condition of body, we need different kind of quantity of fat. Okay. Like in the case of pregnancy, infancy, we have different requirement. So we are going to start. Just like the other macronutrient, I told you what is my macronutrient. Macronutrients means that type of nutrient which requires in big amount, like which requires in grams. Okay, few nutrients are required in microgram, few required in grams. Okay, so which nutrient are required in grams, they are called macronutrients. So what are they? Anyone? I taught this earlier. Macronutrients which require in grams, like big amount, not in microgram. Like protein, fat and carbohydrate required in grams, and iron, vitamins are required in microgram. Okay, so protein, fat and carbohydrate are called macronutrient. So we are studying here fat. Requirement of visible fat for all age group are computed, and guidelines are given for selection of fat. For these, we must consider the total fat intake, which includes both visible and invisible fat in food. See, so many fats we can see, like oil, ghee, like cream of milk we can see, but so many fats are mixed with food, like peanut also have fat, but we can't see this when until we can separate it. Okay, जब तक हम उसको अलग नहीं करते हम उसका फैट नहीं देख सकते, तो दे आर इनविजिबल फैट. सम फूड लाइक एवोकाडो, उसका भी फैट कंटेंट हम अलग से वो फैट नहीं दिखता है, वो मिक्स होता है फ्रूट के साथ, दे आर मिक्स विद दैट, सो दे आर कॉल्ड इनविजिबल फैट. Let us take a look at total fat requirement of meat minimum. Meat यहाँ पे correct. Meat minimum essential fatty acids requirement in all age group. We start with adults. Adults को कितना requirement चाहिए? A desirable amount of linoleic acid. It is a type of fat. ठीक है? तो linoleic acid to be, it is an essential amino acids. Sorry. Linoleic acid to be considered by normal adult in 3. There must be 30%. Okay, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए. यहाँ पे 30% होगा. यहाँ पे 3EN% लिखा है, मिसप्रिंट है, इसको 30% कर लीजिए. The invisible fat present in the usual Indian food is high in linoleic acid content. Rice, wheat, Bengal gram, red gram. Bengal gram क्या होता है? चना जो बोलते हैं ना, चना दाल, दैट इज बंगाल ग्राम. रेड ग्राम क्या होता है? मसूर दाल, जो पिंक कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है, दैट इज रेड ग्राम. तो उसमें लिनोलेइक एसिड बहुत अच्छा क्वांटिटी होता है. Hence, one average Indian has sufficient linoleic acid in his diet. 50% in the 5% in 2,400 kilocalorie diet works out to be 12 grams per day. This implies that 3 tablespoons of cooking oil or tablespoon, यहाँ पे tablespoon होगा, tablespoon fat a daily meets adult requirement. 3 tablespoon मतलब जो राइस स्पून होता है, जिससे हम रेस्टोरेंट में जो राइस के लिए स्पून देते हैं ना, थोड़ा बड़ा होता है घर के स्पून से, जो आइडियल राइस स्पून जिससे हम राइस खाते हैं, दैट उसका जो क्वांटिटी है मेजरमेंट का 15 ml होता है. ठीक है, 15 ml. अगर उसमें हम ऑयल लेंगे तो 15 ml आएगा. तो यहाँ पे बोल रहे हैं 3 tablespoon. Sorry, here is given 3 teaspoon, that is 5 gram. जो चाय का चम्मच होता है छोटा वाला,
उसका मेजरमेंट होता है 5 ग्राम. ओके, तो 3 into 5 दैट मीन्स 15 ml. ओके, कितना हो गया टोटल? 15 ml. एंड टेबल स्पून का अमाउंट होता है 15 ml. ओके, एडल्ट रिक्वायरमेंट. ओके, तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है पर डे जो आईसीएमआर का जो दिया हुआ है, आप एक बार उसको भी रेफर करिए जो मैंने आज पीडीएफ दिया है. ओके, उसमें आपका 30 ग्राम देगा एडल्ट के लिए. 20 to 30 होता है, चेंजेस होता है, डिपेंड करता है पर्सन पे. प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, लिनोलेक एंड एसिड रिक्वायर्ड शुड बी रेज्ड 4.5% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. This can be met from 30 gram per day of oil which has less than 20 gram linoleic acid. Similarly, linoleic acid requirement during lactation rises to 5.7%, which corresponds to 45 gram oil intake which has less than 20% of linoleic acid. तो कितना लेना है? 30 to 45 ग्राम. प्रेगनेंसी में थोड़ा वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी का पीरियड बढ़ता है, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. टोटल 9 months होते हैं प्रेगनेंसी में, तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करता है. तो हर एक ट्राइमेस्टर में आपका 5 ग्राम बढ़ता जाता है प्रैक्टिकल. Now, infancy मतलब infant बच्चे, first year of the age. Adequate breastfeeding ensure 30 gram fat intake by infants. Mostly क्या करना है 6 month तक उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखना है, ठीक है, आउटसाइड फूड नहीं देना है. दैट इज रिकमेंडेड बाय आईसीएमआर, गवर्नमेंट ने उसका रिकमेंडेशन बनाया है. ऑफ विच 10% ऑफ लिनोलेक एसिड एंड 1% ऑफ लिनोलेनिक एसिड. There are 3 essential acids, fatty acids. They are linoleic, linolenic, and one more is there. Okay, आगे हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे टू हमने पढ़ लिए, लिनोलेक, लिनोलेनिक, essential amino fatty acids. There are 3 essential fatty acids, which means EFA needs to infants of 6. In percentage, infants who are weaned completely, weaned मतलब जो weaning period में है, जो start कर दिया खाना जिन्होंने completely और partially मतलब थोड़ा milk feed पे है, mother feed पे है और थोड़ा खाना खा रहे हैं, should be given enough vegetable oil with the high linoleic acid content to ensure 6 of linoleic acid. The research indicates that 3 fatty acids are highly essential for infants as they are partially important for brain development. Hence, it is important to include DHA or docosahexaenoic acid. 3 essential amino acids होते हैं and DHA होता है जो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जो इन्फेंट्स मदर फीड पे नहीं होते हैं. लाइक कुछ भी प्रॉब्लम होने से अगर मदर फीड नहीं मिला उनको तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता जितना एक मदर फीड जिन्होंने 6 month तक किया है एंड पार्शियली 2 years तक किया है. एक्चुअली आइडियली कितना देना है? 2 years तक, लेकिन 6 month एक्सक्लूसिव देना है, उसके साथ और कुछ भी नहीं. लेकिन टिल 2 years दे हैव टू टेक मदर्स मिल्क दैट इज रिच इन DHA, ठीक है, तो आपको ऐसा देना है. और उसके बाद आप घी एड ऑन कर सकते हैं आफ्टर 6 month उनका डाइट में. आफ्टर 9 months के बाद आप घी ऐड कर सकते हैं उनका डाइट में, तो जिससे भी उनको DHA मिलेगा. लेकिन मदर फीड में भी DHA सफिशिएंट अमाउंट में होता है, तो टिल 6 month तो मदर मिल्क से मिल जाएगा. बट समटाइम्स अगर वो नहीं मिल रहा उनको मदर मिल्क किसी भी रीजन से, तो आफ्टर 9 month वी कैन प्रोवाइड देम घी, काउस घी जो होता है. Young and older children, children need 3%, which can be easily met from 8 to 10 gram of oil in diet. However, more visible oil is needed to improve energy density of diets. Otherwise, cereal-based diet become bulky. ठीक है, सिर्फ हम अगर सीरियल से ही उनका पेट भरेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी देना पड़ेगा कैलोरी के लिए. इसीलिए
थोड़ा सा फैट देना होता है जिससे कि उनको एनर्जी ज्यादा मिल जाए। उनको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है छोटे बच्चों को, क्योंकि वो हमेशा वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, मूवमेंट हमेशा कर रहे होते हैं, पैर हाथ हिला रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, तो उनकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत होती है। और उनको ग्रोथ भी करना है, जितना फास्ट वो फर्स्ट ईयर ऑफ एज करते हैं, हम जिंदगी भर में कभी उतना फास्ट ग्रो नहीं करते, तो बॉडी को एनर्जी बहुत चाहिए उसके लिए। 20 gram per day in children diet from oil which has at least 20% linoleic acid. तो 20% उनको linoleic acid चाहिए। Okay. Young and older children को कितना चाहिए? Young children need 3% which can be easily met from 8 to 10 gram of oil in diet. अगर हम उनको खाने में 10 ग्राम यानी कि 2 टीस्पून फैट देते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। However, more visible oil is needed to improve energy density to diet, otherwise cereal based diet become bulky. वही सेम चीज है, अगर हम उसको फैट नहीं देके अगर हम राइस से रोटी से कंप्लीट करना चाहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी देना पड़ेगा, तो हम फैट भी वहां पे देंगे। क्यों फैट देना है? बिकॉज फैट इजिली एनर्जी देता है। लाइक 1 ग्राम फैट कितना देता है? 9 किलो कैलोरीज, और कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? 4 किलो कैलोरीज। ये मैंने पहले भी आप लोग को लिखवाया है। ICMR recommend 20 gram per day in children diet for oil which has least 20% linoleic acid. तो अगर वो 20 ग्राम फैट खा रहा है तो उसमें से 20% लिनोलेइक एसिड होना ही चाहिए। लाइक उनको नट्स वगैरह अगर हम देंगे तो उनको लिनोलेइक एसिड मिल जाएगा। और दाल एंड दाल प्रोडक्ट ऑल्सो हैव क्रोनिक चॉइस ऑफ कुकिंग मीडियम इन इंडियन डाइट। जनरली हम क्या यूज करते हैं? मस्टर्ड ऑयल या फिर जो भी जहाँ का लोकल है ऑयल वो यूज करते हैं। लाइक साउथ में कोकोनट ऑयल ज्यादा होता है, दे यूज कोकोनट ऑयल, एंड कोकोनट ऑयल हैज सो मच MCT that is very good for health. So we must use a little amount of coconut in your daily intake. Epileptic जो patients होते हैं जिनको सीजर्स आते हैं, उस केस में मेरा पेशेंट को मोस्टली फैट देना होता है, तो आई गिव 80 to 90 ग्राम ऑफ फैट, वही उनका ट्रीटमेंट है, उससे उनका सीजर स्टॉप होता है। उस केस में हम आइडियली कितना देना है वो नहीं देते, वो स्पेशलाइज्ड डाइट होती है। उस केस में हम फैट कंटेंट ही ज्यादा देते हैं क्योंकि उनको जो एनर्जी सप्लाई करना है वो फैट से करना है। Young and older children. Young children need, oh, I have done that. Choice of cooking medium in Indian diet. ICMR has given dietary guidelines to maintain N6 N3 ratio of 5:10, which ensure long-term health. For ensuring the appropriate balance of fatty acid in cereal-based diet and the diet of those who do not eat fish are primarily vegetarian. Like in case of many Indian diets, we need to depend on plant food rich in linolenic acid. Wheat, bajra, black gram, cowpea, rajma, soyabean, green leafy vegetables, fenugreek and mustard seed are rich in linolenic acid. अगर हम दाल चावल को मिक्स करके खा लेंगे ना तो हमको तीनों अमीनो एसिड्स मिल जाएगा। The choice of cooking oil should be moderate linoleic acid contain oil like groundnut oil, rice bran oil और sesame oil. Sesame oil तिल का तेल होता है, ठीक है। Soybean oil containing both linoleic and alpha linoleic acid. Combination of two oil in approximately equal proportion like high linoleic acid oil like sunflower oil and cottonseed oil with palm oil. हम एक और मेथड कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल एंड कोई भी व्हाइट ऑयल लाइक सनफ्लावर ऑयल या फिर राइस ब्रान ऑयल को 1:1 प्रोपोर्शन में कर देंगे तो हमको तीनों फैटी एसिड्स मिल जाएगा।
or we can have some portion of coconut oil and some portion of mustard oil. Mustard oil have what? Containing alpha linolenic acid along with any other cooking oil. This will reduce your uric acid from mustard oil and thereby its undesirable health effect. और इससे जो health effect है वो होता है. ओके अभी क्या है, चेंजिंग ट्रेंड्स काफी चेंज हो रहे हैं. आजकल लोग ऑलिव ऑयल्स खा रहे हैं, है ना. ये फॉरेन कंट्री में ऑलिव ऑयल बोल रहे हैं, या ये ऑयल राइस ब्रान ऑयल, बहुत चीजें फैंसी हो रही हैं. सो क्या हो रहा है अभी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इज एसेंशियल फॉर बॉडी एंड इज कैलकुलेटेड above, but the fact that this diseases like obesity, heart disease and cancer are arise especially in affluent societies can be attributed to the changing dietary and lifestyle practices coupled with stress. क्यों हो रहा है ओबेसिटी आजकल लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा सोसाइटी में क्यों हो रहा है? बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज हो गई है. हम बहुत ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, एक्सरसाइजेस रिड्यूस हो गई हैं एंड स्ट्रेस भी एक रीज़न है. स्ट्रेस में इंसान को ज़्यादा भूख लगती है. दे ईट सो मच व्हेन दे स्ट्रेस, तो कुछ खाते हैं. एंड और बैठे रहने से क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स तो बढ़ता ही है, साथ में बीएमआर स्लो हो जाता है, जिससे कि वो अगर जितना कैलोरीज खर्च करना चाहिए, एक्सपेंस करना चाहिए जिस काम में, उतना नहीं करता. वो कम अमाउंट बॉडी खर्च करने लगती है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी एक्टिव. कंटिन्यूअस नहीं बैठना है. इफ यू आर सिटिंग 20 minutes continuously, then we have to move like 2 minutes. After that we have to move 2 minutes. अगर आप ऑफिस में बैठे हैं या कुछ काम के लिए बैठे हैं तो 20 मिनट्स के बाद ध्यान रखें, यू हैव टू एक थोड़ा सा छोटा सा राउंड लगा के आइए, या थोड़ा सा वॉक करके आ जाइए, वॉशरूम होके आ जाइए, पानी पी के आ जाइए, तो आपका मोबिलिटी बना रहेगा. We have already discussed that fried food and baked product could be source of trans fatty acids. Trans fatty acids are harmful for our body. Further, the quality and sources of frying oil is not known. And एक और चीज क्या प्रैक्टिस हो रही है अभी क्या बहुत टाइम से बाहर के फूड में हो रही है, उन कॉस्ट कटिंग करने के लिए दे रीयूज ऑयल, लाइक समोसा वाले एंड जो भी फ्राई करते हैं बाहर में चीजें, दे रीयूज देयर ऑयल. थोड़ा कम हुआ उसी में मिक्स कर दिया और ऑयल, फिर थोड़ा क्वांटिटी कम हुआ उड़ गया ऑयल, तो उसी में थोड़ा और ऑयल ऐड कर दिया. तो क्या हो रहा है, उसकी जो डेंसिटी है वो काफी थिक ज्यादा हो जा रही है, लाइक बहुत स्टिकी हो जाएगा. उसको आप चेक करिएगा. अभी बाहर का जो ऑयल होता है, जो इसमें समोसा बना होता है, उसको आप चेक करिए, बहुत ही स्टिकी होता है. तो वो हमारे आर्टरीज के लिए भी बहुत डेंजरस है. तो अगर आपको बहुत ही मन है, क्रेविंग है, समटाइम्स खाया बाहर का, इट्स ओके. बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, व्हाट यू कैन डू, बाहर से कच्चा समोसा लेके आइए, घर में अपना अच्छा ऑयल में यू कैन फ्राई इट. ठीक है, बट ट्राई टू अवॉइड आल्सो फ्राइड थिंग्स. It is always better to select dishes prepared by other cooking method like boiling, steaming, braising, etc. Then frying for lesser oil intake. फ्राइड चीजें कम खाइए. अगर हम घर का भी बहुत फ्राई खाएंगे तो अल्टीमेटली मोटे तो होंगे, ओबेसिटी तो होगी, लेकिन आर्टरीज के लिए उतना नुकसान नहीं करेगा. बट लाइक all fried food are harmful for long time, but if you have to choose home fried food or outside, then I will vote for home fried food. Okay, but all fried food, all fatty rich food are not good for health. Ultimately they increase the triglyceride, cholesterol, VLDL and your lipid profile को खराब करता है. तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप फ्राइड खा रहे हैं आज, तो कोशिश करना आफ्टर 15 days you have to restrict your fried food. Okay, and whenever you make your food fries at your home,
व्हाट यू कैन डू, यूज लिटिल अमाउंट ऑफ फैट। इससे क्या होगा, आप अगर कुछ और में यूज कर रहे हैं, मेड को दे रहे हैं या उससे फिर बाद में पराठास बना रहे हैं, तो उसको आपको कम ही आपको रीयूज करना पड़ेगा। लाइक थ्राइस एंड 4 टाइम्स उसको आप मत करिए। एटलीस्ट अगर आप उसको फेंक नहीं सकते, ट्वाइस, उससे ज्यादा नहीं। एक बार यूज कर लिया, नेक्स्ट टाइम उससे सब्जी बना दी या मेड को दे दिया या कुछ और ग्रीसिंग का काम कर लिया। बट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर reuse, repeatedly reuse your oils. This is due to excessive consumption of fat and their preventive methods. Almost I think सबको पता होगा ज़्यादा फैट खाने से क्या क्या हो सकता है। So obesity is first thing, मोटे तो होंगे ही, ठीक है, वेट तो गेन होगा ही। अगर आपको किसी को पतला करना है, फर्स्ट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर फैट्स एंड और क्या करना है, फाइबर्स इंटेक बढ़ा देना है एंड प्रोटीन्स को भी चेक करना है प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं। 3 चीजों से लोगों का वेट को मेंटेन किया जा सकता है। एंड और दूसरी चीज क्या हो सकती है फैट ज्यादा खाने से, हार्ट डिजीज, ठीक है। सो हार्ट डिजीज भी बहुत तरह के हैं। Now first is obesity. In obesity, cutting down total energy intake or increasing output of ensure energy balance is the basic principle of preventing fat being energy dense is always dangerous in large amounts. Selection of food and modified cooking methods further prevent excessive fat intake. Low fat diets could be given with high fiber and fluid diet to ensure compliance of satiety. फैट ज्यादा खाने से अल्टीमेटली क्या होगा, एनर्जी तो इनटेक बढ़ेगा ही, हम ज्यादा एनर्जी इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। हमें एनर्जी कितनी इनटेक करनी है, जितनी हम एक्सपेंस कर सके, जितनी हम खर्च कर सके उतनी ही करनी है। तो अगर आप ज्यादा खा रहे हैं और उतनी खर्च नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्टोर होने लगेगा बॉडी में। एंड स्टोर हो रहा है दैट मीन्स यू आर गेनिंग, यू आर स्टोरिंग योर यू आर मेकिंग योर फैटी सेल्स इन योर बॉडी। और एक बार फैट सेल्स बॉडी में जो बन जाते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं उनको, तो फिर वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो श्रिंक होंगे लेकिन कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो आपको नया नहीं बनने देना है, क्योंकि अगर एक बार मान लीजिए आपने एक मैक्सिमम वेट गेन कर लिया, लाइक हाईएस्ट वेट मेरा है मान लीजिए 80 kg, ठीक है, एक मैंने रीच किया किसी टाइम पे 80 kg। अब मैंने फिर वेट लॉस करके वापस 50 kg ले आया, ठीक है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा जब खाना स्टार्ट किया 80 kg जाने में मुझे बहुत इजी होगा, जाने में फटाफट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू है, जो फैट टिश्यू है, तो ऑलरेडी बने हुए हैं बॉडी में, ओके। तो हम उस लेवल तक जाने में फटाक से पहुंच जाएंगे, बट उसके आगे जाने में थोड़ा स्लो लगेगा। तो कोशिश करना है कि आप जैसे ही लगे कि आप थोड़ा ओवरवेट हो रहे हैं वहीं पे स्टॉप हो जाना है, उससे बढ़ने नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि एक जो मैक्सिमम वेट है वहाँ रीच होना बहुत इजीली होता है। रिड्यूस तो हो जाता है डाइट से, लेकिन जैसे ही आप फिर फैट रिच खाएंगे एंड डाइट थोड़ा गड़बड़ खाएंगे, लो प्रोटीन खाएंगे, तो आपका फिर से उस लेवल पे पहुंच जाएगा। फैट का एक बेनिफिट है, वो सटाइटी फील कराता है, लाइक एक संतुष्टि बोलते हैं ना, एक गुड फीलिंग, तो वो जरूर देता है। एंड टेस्ट इंक्रीज करता है, ये फैट का फायदा है और इसीलिए लोग ज्यादा खा लेते हैं। नाउ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज शो स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इनटेक। हार्ट डिजीज क्या करता है, किससे लिंक है, हार्ट डिजीज क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल इनटेक अगर ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल इनटेक भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, और कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड भी कह सकते हैं, बिकॉज हम हमेशा कोलेस्ट्रॉल बाहर से नहीं खाते, हमारे बॉडी में भी बन रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग होते हैं या वेगन्स लोग होते हैं, क्या उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, मगर वो जो वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं उससे बॉडी के अंदर बन रहा है, वेजिटेबल ऑयल जो खा रहे हैं वो बॉडी के अंदर बन रहा है, तो हमेशा इनटेक नहीं होगा। हम कोलेस्ट्रॉल बॉडी में भी बनाते, तो हाई इनटेक ऑफ फैट जो है वो होने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल आर ऑफ एनिमल ओरिजिन, ठीक है,
जो एनिमल ऑरिजिन, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि जो एनिमल सोर्स के जो फैट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल, लेकिन वेजिटेबल ऑयल जो हम खाते हैं उसके बाद, खाने के बाद बॉडी में बनता है. हायर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बट high blood cholesterol with family history does not necessarily gain to cholesterol free diet. Both drug and low cholesterol diet is recommended. Vegetable oil have no cholesterol. Okay, here is written vegetable oil have no cholesterol, but it doesn't mean that you can have freely vegetable oil. Okay, you have to restrict your 20 to 25 gram of fat per day. The reference of good and bad cholesterol to dietary fat in reference to the effect of blood lipid and HDL LDL. Okay, एक HDL होता है, एक LDL होता है. इसका फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन, यानी फैट और प्रोटीन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तो एक होता है हाई डेंसिटी वाला, एक होता है लो डेंसिटी वाला. अगर किसी के पास कोई ब्लड टेस्ट कराया है किसी ने भी फैमिली में, तो उसका एक बार आप देखिए रिपोर्ट्स, उसमें लिपिड प्रोफाइल का जो पेपर होगा उसमें लिखा होगा HDL LDL लिखा होगा. ठीक है, तो HDL अगर क्वांटिटी से कम है तो इट इज बैड फॉर आवर हेल्थ. अगर LDL क्वांटिटी से ज्यादा है तो इट इज बैड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, HDL is good for our body, LDL is bad for our body. एक और होता है VLDL. Okay, VLDL means very low density lipoprotein. Okay, VLDL very low density, L से लास्ट वाला lipoprotein. तो अगर किसी का वो बढ़ा हुआ है तो that means it is very dangerous और उसको हार्ट का बहुत सारा इश्यू हो सकता है. तो उस केस में क्या करना है, एकदम से फैट क्वांटिटी रिड्यूस करना है. ठीक है, मेरे पेशेंट्स का अगर किसी का 400 होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, आइडियली 200 से कम होना चाहिए. ठीक है, लेकिन डाइट, एक बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट्स पे रखने के बाद पेशेंट इजीली 150 टू 200 के अंदर आ जाता है. तो आप सिर्फ डाइट से आप ला सकते हैं एक महीने में जो आइडियल HDL LDL है वो लेके आ सकता है. And patient must include good fats like nuts they have to take. High intake of N6 polyunsaturated fats have been associated with reduced total cholesterol and LDL cholesterol concentration that are associated with low risk HDL CSD. In general, CSD क्या होता है, low risk of CSD. CSD is kind of disease. ठीक है, chronic heart disease. Okay, chronic heart disease मतलब जो long time से जो हार्ट का जो डिजीज चलता आ रहा है उसको CSD कहते हैं. In general, epidemiological studies have demonstrated an inverse association between N6 polyunsaturated fatty acids instead of risk of CSD. N3 polyunsaturated fatty acids partially eicosapentaenoic acid, EPA बोलते हैं जनरली शॉर्ट में, EPA and disacchanoic acid DHA जो हमने पहले भी पढ़ा है, जो मदर्स मिल्क में होता है, काउज के घी में होता है. ठीक है, have been shown in reduced risk of CSD and stroke by multitude of mechanisms. Okay, so DHA is docosahexaene
hexanoic acid. DHA is docosahexaenoic acid. And what is CHD? CHD is chronic heart disease and stroke. Stroke क्या होता है? जो अटैक्स आते हैं उसको स्ट्रोक कहते हैं. कई बार पेशेंट को फर्स्ट स्ट्रोक में भी डेथ हो जाती है, तो उस केस में हम मेनली ब्लड फ्लो उनको बढ़ाना है. मेनली क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है जो तब हार्ट को ही सप्लाई नहीं मिलती है ब्लड की. ठीक है, हार्ट को भी ब्लड की सप्लाई चाहिए. हमारे जैसे सारी बॉडी को ब्लड की सप्लाई चाहिए, ऐसे ही हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए. तो हम हार्ट को ऐसे प्रेस करते हैं 32 टाइम्स, फिर माउथ में एयर देते हैं, फिर प्रेस करते हैं. तो दैट इज द मैकेनिज्म. और भी शायद आयुर्वेदिक में है कि लेग ऊपर कर देते हैं, ऐसा कुछ है, जिससे भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड फ्लो इजीली अपर बॉडी में जाएगा. बाय प्रिवेंटिंग अरिदमियाज. अरिदमियाज क्या होता है, एक रिदम होती है हार्ट की बीट होने की, लाइक लब डब लब डब लब डब. एक जो सीक्वेंस है, जैसे एक जो रिदम है हार्ट का बीट होने का, वो गड़बड़ होने लगती है अगर उनका CHD है तो उस केस में भी सिगरेट स्मोकिंग पेशेंट को बोलना है बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं वो स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो फिर इजीली लाइक रप्चर होने के चांसेस होते हैं. तो इजीली फ्लो अच्छा नहीं होता है. तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप स्मोकिंग एंड रिड्यूस फैट्स इन दैट डाइट. ICMR क्या सजेस्ट करता है, यूज मोर देन वन सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल. आई ऑल्सो टोल्ड प्रीवियसली कि आप 2 ऑयल यूज कीजिए, व्हाइट ऑयल एंड एनी व्हाइट ऑयल, मोस्टली सनफ्लावर ऑयल एंड राइस ब्रान ऑयल. ओके, ये दोनों, और साथ में मस्टर्ड ऑयल. तो इससे हमें तीनों फैटी एसिड्स मिल जाता है. तो मोस्टली स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को तो वैरायटी ऑफ ऑयल यूज करना ही चाहिए, जिससे कि कुछ जो फैटी एसिड्स है किसी एक में होते हैं, कुछ फैटी एसिड्स किसी दूसरे में होते हैं. सेकेंडली, फैट का कंटेंट कम करना है, जो अमाउंट है वो कम करना है, वेट लॉस करना है, वेट एकदम आइडियल रखना है, ओवरवेट नहीं होना है. लिमिट यूज ऑफ घी, बटर एंड वनस्पति. क्यों? बिकॉज उनका जो सैचुरेशन का, उनका जो जमने का है टेम्परेचर वो काफी कम है, इसीलिए 20 डिग्री पे वो जम जाते हैं. इसके लिए eat linoleic acid rich food like green leafy vegetables, spices like fenugreek seeds and mustard seeds in predominantly नहीं होगा यहाँ पे, predominantly होगा. सीरियल पल्स डाइट. ओके, क्या करना है, सीरियल पल्स दोनों खाना है. जैसे इंडियन डाइट क्या होता है, मोस्टली हम दाल चावल दोनों खाते हैं साथ में, है ना, सिर्फ चावल और सब्जी ऐसा नहीं खाते. तो क्या होता है, 2 टाइप के न्यूट्रिशन मिलता है. ईट फिश मोर फ्रिक्वेंटली देन मीट एंड पोल्ट्री. फिश को हेल्थियर माना जाता है रेदर देन मीट एंड पोल्ट्री. क्यों? क्योंकि उसमें गुड फैट्स होते हैं, विटामिन ई होता है मोस्टली. जो कैप्सूल आती है कॉड लिवर ऑयल, तो उसमें फिश कॉड एक फिश होती है, ठीक है, उसके लीवर का ऑयल होता है वो. तो विटामिन ई कैप्सूल में वही होता है.
लिमिट और अवॉइड ऑर्गन लाइक लीवर, किडनी, ब्रेन। लीवर क्या करता है, हमारी बॉडी का फैट को स्टोर करता है, ठीक है, फैट वहीं पे स्टोर होके रहता है। तो किसी एनिमल का भी फैट लीवर में ही स्टोर होता है, किडनी में काफ़ी सारा वेस्ट एंड फैट स्टोर होता है, ब्रेन में भी काफ़ी फैट, ब्रेन में तो बहुत फैट होता है जो मैसेज पास करने में हेल्प करता है, ग्रे मैटर बोलता है। तो इनको अवॉइड करना है, इससे क्या होगा, उसमें फैट भर भर के स्टोर है, वो जब हम खाएंगे तो डायरेक्टली फैट स्टोर हमारा पास हो जाएगा। तो जो भी नॉन वेजिटेरियन है दे मस्ट अवॉइड ऑर्गन मीट्स, जो ऑर्गन पार्ट है बॉडी के। skimmed milk and low fat milk is preferred instead of whole milk. Okay, skimmed milk अगर नहीं अवेलेबल है तो डबल टोन मिल्क खाना है। डबल टोन या सिंगल टोन भी मिलता है मार्केट में, ठीक है। मिल्क में कलर कोडिंग होती है, अगर आप पैकेट मिल्क खा रहे हैं, ओके, तो आप पैकेट में देखेंगे कुछ ग्रीन कलर पैकेट होते हैं, कुछ येलो, ऑरेंज, पर्पल ऐसे होते हैं। तो इनकी कलर कोडिंग की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्यों, ताकि लोग इजीली समझ जाएं कौन सा ज़्यादा फैट वाला है। तो आपको कोशिश करना है ब्लू या फिर पर्पल कलर मिल्क प्रेफर करना है या फिर किसी को रिकमेंड करना है। ग्रीन में फैट कंटेंट ज़्यादा है एंड रेड में तो सबसे ज़्यादा है। उसमें आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, उसमें टोन मिल्क एंड फैट कंटेंट। कभी आप शॉप में जाएंगे तो 2 कलर का मिल्क का पैकेट लीजिए और उनको कंपेयर कीजिए कि इसमें फैट कितना है और दूसरे में फैट कितना है। परसेंटेज होता है उसमें 3%, 5% ऐसा लिखा होता है। जो ब्लू पैकेट होता है उसमें 3.2% होता है, तो दैट इज ओके। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल पीपल जैसे हम लोग जो ज़्यादा बैठ के काम करते हैं तो उनके लिए डबल टोन मिल्क प्रेफरेबल है। बट समटाइम्स लोगों को काउज मिल्क पसंद होता है, जैसे मेरे यहाँ काउज मिल्क आता है फार्म से सीधा। तो व्हाट आई कैन डू, उसको बॉईल करके फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे जब उसका फैट सेपरेट हो जाए, फ्रिज में रखना ही पड़ेगा आपको फैट सेपरेट करने के लिए, तो नेक्स्ट डे आप उसको बिना डिस्टर्ब किए अगर छोड़ देंगे फ्रिज में तो उसका फैट ऊपर आ जाएगा। तो आप उसको निकाल के देन यू कैन यूज योर मिल्क फॉर ड्रिंक एंड कर्ड। ओके, फिर उस क्रीम को आप घी या फिर किसी दूसरा पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड आपको जो मिल्क डायरेक्टली जो डेली बेसिस पे ले रहे हैं वो आप उसमें फैट कंटेंट जो विजिबल फैट है वो कम हो जाएगा। सो ऐसे आप अपना रिड्यूस कर सकते हैं फैट इनटेक। नाउ हियर आर गिवन सम मेथड्स कि आप किस में फैट कंटेंट कम यूज कर सकते हैं। अवॉइड बेक्ड फूड एक्सेप्ट ब्रेड। ब्रेड में फैट कंटेंट बहुत कम होता है, तो ब्रेड बोला गया, बट इंडिया में हम ब्रेड्स घर में नहीं बनाते, है ना, तो हम यहाँ पे पराठास बोल सकते हैं कि पराठास अवॉइड करिए, ठीक है। अवॉइड बटर टोस्ट, ओके, बटर टोस्ट अवॉइड करना है। अवॉइड एग्स एज दे आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल। एग्स तो खा सकते हैं लेकिन योक अवॉइड करना है। मेनली जो एग वाइट होता है वो सिर्फ प्रोटीन है, वो एल्बुमिन है, बट उसका जो योक है दैट इज रिच इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल स्पेशली। तो जो भी पेशेंट CHD का पेशेंट है, हाई प्रेशर का पेशेंट है, इवन डायबिटिक पेशेंट है, उनको योक्स रिस्ट्रिक्ट करना है। दे शुड अवॉइड योक्स। Sometimes they can have once in a day, like in 4-5 in a week, 1 yolk per week they can have, but not more than that. Or better if they can avoid that. Reduce number of cooked preparation. Each Indian preparation need a lot of fat. Yes, स्पेशली नॉर्थ इंडियन फूड में हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालने के लिए बहुत फैट डालते हैं और बहुत फ्राई करके बनाते हैं। तो कोशिश करना है क्वांटिटी कम रखना है। मोस्टली आपको मेजरमेंट करना है। कैसे आप मेजरमेंट करेंगे? दैट डे one student Meenakshi was asking about the methods. So what can you do?
You can measure your monthly oil. Okay, you can write this. If in your home there are 4 people, okay, first I'm talking about one person. Okay, if you, yeah, Kusum Nayak, ask me. You can unmute yourself. कुसुम नायक, want to say something? कुछ कहना चाहते हैं? You can unmute and ask, otherwise raise your hand. Okay, I'm continuing myself. So what can you do if you are single at home? You are allowed to take 25 ml per day. So monthly, how much you can consume? 25 into 30. Okay. And if you are 4 person at home, so what can you do? 25 into 4, like 4 person into 30. So that means you can consume 3 liters per month. Okay, 25 into 4, that means 100 ml. 100 ml multiplied by 30 for a month, that is 3 liters पर मंथ. अगर आप 4 लोग हैं तो चेक करिए आपके घर में 3 लीटर से ऊपर खाना में नहीं जाना चाहिए, इंक्लूडिंग योर घी, बटर, एवरीथिंग उसी के अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं. ओके, तो यू मस्ट चेक दैट हाउ मच you are consuming at your home. If you are mostly eating outside, then you should restrict to 2.5 for 4 person. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाहर खा रहे हैं तो वहाँ से हम 500 माइनस कर देंगे. अगर आप बाहर में 5 बार भी खा रहे हैं तो they have so much oil in that. Avoid gravies in outside because mostly gravies have lots of fats. So how you can reduce? You can modify your cooking methods. You can avoid frying. Okay. Baking यहाँ पे क्यों avoid बोला है? Because cakes के बारे में ये रेफर किया है. Cakes में बहुत ज़्यादा फैट जाता है, इसके लिए यहाँ पे baking avoid करने बोला है. Except bread बोला है because bread में फैट कम लगता है. But if you are having outside bread, तो brown bread is having more fat than white bread. So I don't prefer brown bread. Okay. It has also color, caramel color, so it is more harmful than white bread. So avoid breads at home. You can modify your recipes. If you are making dosa, so you can reduce the quantity of fat. Dosa is healthy, but if you are using so much fat, it become unhealthy. But if you can make low fat dosa, then it is healthier. Dry roasting should be preferred over frying using plenty of ghee. Okay, फ्राई करते हैं जो बहुत घी डाल के, उससे बेटर है यू कैन डू रोस्टिंग, ड्राई रोस्टिंग. लाइक पीनट आपको खाना है तो ऑयल में फ्राई मत करिए बिकॉज इट हैज ऑलरेडी सो मच फैट, बट इट हैज गुड फैट. बट इफ यू एडिंग सम घी और मस्टर्ड ऑयल इन इट, देन उसका फैट क्वांटिटी ज्यादा हो गया, तो बेटर है यू कैन ड्राई रोस्ट इट. पापड़ यू कैन ड्राई रोस्ट, है ना, फ्राई के बदले ड्राई रोस्ट करिए एंड आपको हैबिट हो जाएगा. अगर आप रेगुलर बेसिस में ड्राई रोस्ट खा रहे हैं, देन यू विल लाइक दैट ओनली. नाउ 10 minutes आर लेफ्ट. थोड़ा हम क्वेश्चनर के लिए छोड़ते हैं टाइम, इतना ही करते हैं आज. कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछिए. Anyone has any query? कुछ पूछना है किसी को? If not, I'll continue this method of reducing fat intake. Okay. Limit non-vegetarian food. Why non-vegetarian food कम खाना है?
क्योंकि उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है एंड जो इंडियन मेथड है कुकिंग का उसमें भी बहुत ज़्यादा फैट जाता है. तो अवॉइड नॉन-वेज फूड, स्पेशली मीट एंड चिकन. Fish is better than both of them. Prefer skimmed milk even in yogurt, cottage cheese, etc. Okay, skimmed milk लिखा है, but in India we can use double tone. Skimmed लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. स्किम्ड मतलब बिल्कुल भी फैट नहीं, ठीक है. हम थोड़ा फैट ले सकते हैं, दैट मीन्स डबल टोन. अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में स्किम्ड मिल्क, ठीक है. तो आपको डबल टोन इजीली मिल जाएगा और सिंगल टोन मिल जाएगा, तो यू कैन गो फॉर दैट. एंड आपको योगर्ट भी करना है, कर्ड भी करना है अगर घर में, तो यू शुड यूज डबल टोन मिल्क और टोन मिल्क. बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि घर में कैसे आप टोन कर सकते हैं. ओके. Avoid eating out on regular basis on purchasing food, okay? और purchasing food, बाहर का food कम खाना है. और बाहर sometimes आप खा भी रहे हैं तो उसमें से fried food avoid करिए. Pizza is very unhealthy with extra cheese. Cheese has so much fat. Creamed soup. Outside food are rich in fat. They have lots of butter, lots of sodium, so avoid that also. Fried rice and noodles also have so much fat. Biryanis have so much fat. They have Ajinomotos also, so they are rich in unhealthy things. So try to reduce your outside meals. If you're not able to cook at home daily, you can cook at your home, but avoid outside food. When eating out, keep in mind hygienic handling and select soups, sprout salad, fruits, cocktails. जब आप बाहर खा रहे हैं तो अगर ऑप्शन नहीं है, आप किसी टूर पे गए हैं, कुछ है बाहर ही खाना है, तो उसमें आप स्प्राउट सैलेड्स ऑर्डर कर सकते हैं, फ्रूट सैलेड्स ऑर्डर कर सकते हैं. ओके. And mocktails are better than cocktails. You can use mocktails or fruit juices, but compared to fruit juices, fruits are better. Prefer cooking methods like steaming, boiling, stewing. ये सब methods cooking का use करना है ज़्यादा. Avoid frying. Indian curry making includes frying of onion, ginger, garlic paste in the good amount of fat. Among desserts, like बहुत ज़्यादा fries नहीं करना है आपको. Among desserts, prefer fresh fruit and non-thickening milk pudding. ठीक है. हम milk pudding ये all are used to like foreign Western foods. Okay. Made from skimmed milk. Avoid pastries, ice creams, eggs. ना pastries, ice cream is very common in India. So इसको avoid करना है. Egg custard is very not common in India, so आप इसको avoid कर सकते हैं. Kheer is rich in fat and also sugar, so minimize it. You can use it in your festivals only. Kulfi is also rich in fats and sugar. So if a person is having CHD or diabetic, they should avoid these things. And if a person is normal, healthy body weight, they can enjoy them once in a month. Okay, not more than that. Aim to eat no more than 3 teaspoons of fat per day through cooking. यहाँ पे 15 ml बोल रहा है per day किसी person को लेने के लिए. But here is a condition, person is CHD or overweight. अगर person normal है, they can have 25 ml per day. Okay. So अगर किसी इंसान को कुछ भी बीमारी नहीं है and they have healthy body weight, तो उनको 25 ग्राम पर डे वो खा सकते हैं. आज के लिए इतना ही करेंगे. It's 7:57. आई होप क्लास समझ में आ रही है सबको एंड थोड़े हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड कर रहे हैं डाइट में.
आई थिंक ओवरवेट कोई नहीं है क्लास में। नो मैम। वेरी गुड। आप इससे कैलकुलेशन, एक मेथड होता है BMI, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगी कैसे आप बता सकते हैं आपका कितना ज्यादा बॉडी वेट है, ठीक है, वेट ज्यादा है, दैट आई विल टीच इन नेक्स्ट क्लास। मैडम 5.3 वो है जैसे हाइट, तो 71 के अप्रॉक्स मतलब वेट है, तो फिर इसका मतलब तो ओवर वेट ही है ना। आप पहले उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तब आपको आइडियली निकालने में इजी होगा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, हाइट सबसे पहले लेना है और उसका वेट लेना है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उसका कितना वेट ज्यादा है या कम है। तो उसके लिए एक मेथड होता है, BMI मेथड होता है, उससे हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है kg/, मैंने शायद बताया है क्लास में, कल फिर से करा दूंगी, है ना अनीता जी। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कैसे BMI निकालते हैं। एक बार मैं कल फिर से आप रिमाइंड कराइए, मैं फिर से उसका फॉर्मूला बता दूंगी एंड उसको आप निकालिए। सब लोग अपना अपना BMI निकालिए, आपका BMI कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है। तो कल हम वो क्लास में करेंगे, कल मीन्स नेक्स्ट क्लास, ओके। सो आज हमने CSD पढ़ा। मेनली CSD के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आपको फैट रिस्ट्रिक्ट करना है, ओके, एंड बॉडी वेट को नॉर्मल रखना है। अगर ओबेसिटी है और आप फैट कम तो करा है थोड़ा, लेकिन फिर भी ओबेसिटी है, तो आपको ओबेसिटी भी साथ साथ कम करना है, इतना फैट कम करना है कि आपका नॉर्मल वेट आए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन CSD। हाई प्रेशर हो गया आपका, या फिर जिसका ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, तो उस केस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फैट इनटेक चेक करेंगे, दिन भर में वो कितना फैट किस तरीके से खा रहा है, एंड वहां पे हम उसका फैट रिड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड आई रिकमेंड लाइक 40 एज के ऊपर जो भी होते हैं उनको साल में एक बार तो अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल एंड ऑल सब कुछ कराना चाहिए, जिससे उनको पता रहे कि उनका बॉडी स्टेटस क्या है, और उसके हिसाब से वो अपना डाइट में चेंज करके अपनी बॉडी को हेल्दी कर सके। ओके, थैंक यू मैम।